Hello students, myself Dr. Balpreet Kaur, Associate Professor in DIPS IMT Jalandhar. Today I am going to discuss the constitutional aspects of goods and service tax. So before going to discuss GST, first of all we will discuss the meaning of tax. Tax is a compulsory payment to be made by every resident of India. The foundation of an effective and stable finance system of a country lies in its tax system. As you know, the government imposes various types of taxes on the residents of the country, as tax is the income of the government which the government use for the development of the country. जैसे बच्चे आपको पता ही है कि गवर्नमेंट डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के टैक्स इम्पोज करती है पब्लिक के ऊपर, लाइक सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स। तो जो पैसा गवर्नमेंट के पास इकट्ठा होता है इन फॉर्म ऑफ टैक्सेस, वो पैसे को, उन फंड्स को गवर्नमेंट अपनी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए यूज करती है। There are different types of taxes and these are classified into four categories. First one is on the basis of relationship between tax base and tax rate. First one is proportional taxes. Taxes which vary in direct proportion to the change in tax base. In the tax base, you can take as income, value of goods, property. जैसे जैसे आपका वैल्यू, लाइक प्रॉपर्टी की वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है तो आप गवर्नमेंट को ज्यादा प्रॉपर्टी टैक्स पे करोगे। अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू डाउन जा रही है तो आप गवर्नमेंट को कम टैक्स पे करोगे। So property tax is one of the example of proportional taxes. Second one is progressive taxes. Progress means आगे बढ़ना. So tax which increase with the increase in income is called as progressive taxes. And its example is income tax. अगर मेरी इनकम कम है तो मेरे को कम टैक्स पे करना पड़ेगा। किसी की इनकम मेरे से कुछ ज्यादा है तो वो मेरे कंपैरेटिव ज्यादा टैक्स पे करेगा। नेक्स्ट वन इज रिग्रेसिव टैक्स। Like with the increase in the income, the tax rate decreases in such regressive taxes. For example, tax on necessities. Regressive tax is a type of tax that is assessed regardless of the income. कि income का इसके साथ कोई concern नहीं है। Like कि अगर कोई necessities purchase कर रहा है तो उसको, चाहे वो poor है चाहे वो rich people है, सभी को same amount of tax pay करना पड़ेगा। For example, sales tax. The next one is digressive taxes. Taxes which are mildly progressive. Progress तो हो रही है लेकिन slowly. Such taxes may be first increased to some limit and then after one point they may be charged according to fixed flat rate. कुछ टाइम के लिए तो जो टैक्स रेट है वो इंक्रीज होएगा, लेकिन एक टाइम के बाद फिक्स रेट ऑफ टैक्स जो है वो गवर्नमेंट चार्ज करेगी अपने रेजिडेंट से। The next is on the basis of method of assessment. First one is specific duty. Specific duty is levied according to some unit of a product. For example, it is imposed on the basis of quantity. For example, fixed amount per cigarette. के जैसे एक सिगरेट है उसके ऊपर इतना टैक्स लगेगा, तंबाकू का पैकेट है, एक पैकेट है उसके ऊपर इतना टैक्स लगेगा। So this tax is basically depends upon the quantity. And the second one is ad valorem tax. These taxes are levied on the basis of value of goods. In case of specific duty, tax is imposed on the basis of quantity. And in case of ad valorem tax, tax is imposed on the basis of value of
goods. And the next is on the basis of incidence and impact of taxes. Incidence of tax means the first burden of tax. Incidence of tax fall on a person on whom the tax levied for the first time. Incidence of tax can be shifted to other persons. An impact of tax means the ultimate burden of the tax. Impact of tax falls on the person who ultimately bears the burden of tax, like consumer. जैसे हम एक एग्जांपल लेकर चलते हैं, उसमें हम दोनों चीजें डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज इंसिडेंस ऑफ टैक्स एंड व्हाट इज इम्पैक्ट ऑफ टैक्स. सपोज के सेल्स टैक्स किनको लगता है बेसिकली जो गुड्स को सेल कर रहा है, लेकिन वो जो हमारा सेलर है वो खुद टैक्स अपनी पॉकेट से पे नहीं करता. वो किससे टैक्स कलेक्ट करता है? अपने कस्टमर से. जैसे आपने देखा होगा कि प्रोडक्ट के ऊपर लिखा होता है एमआरपी इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस. आप क्या करते हो? आप जितनी प्राइस है प्लस उसके ऊपर जितना टैक्सेस गवर्नमेंट ने इम्पोज किए हैं वो आप किसको पे करते हो? सेलर को. तो सेलर आगे क्या करता है? वो आपसे अमाउंट कलेक्ट करके टैक्स की वो गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाता है. तो इंसिडेंस ऑफ टैक्स मींस द फर्स्ट बर्डन ऑफ टैक्स. तो फर्स्ट बर्डन ऑफ टैक्स किसके ऊपर आया है? बेसिकली सेलर के ऊपर. लेकिन सेलर ने क्या किया? सेलर ने वो इंसिडेंस ऑफ टैक्स था, वो जो उसका बर्डन था, उसने किसके ऊपर शिफ्ट कर दिया? अपने कंज्यूमर्स के ऊपर. तो वो क्या करेगा? वो कंज्यूमर से पैसा इकट्ठा करेगा और आगे फिर फर्दर किसको डिपॉजिट करवाएगा? वो डिपॉजिट करवाएगा गवर्नमेंट को. तो अगर हम बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेस की, तो इम्पैक्ट ऑफ टैक्स में क्या आता है कि अल्टीमेट बर्डन ऑफ टैक्स. कि जैसे सेलर ने बर्डन किसके ऊपर ट्रांसफर कर दिया? वो उसने बर्डन को शिफ्ट कर दिया अपने कंज्यूमर के ऊपर. अब आप अगर आप कंज्यूमर हो तो आप क्या करोगे? आप उसको टैक्स पे करोगे सेलर को. तो अल्टीमेट बर्डन किसने बियर किया? आपने, क्योंकि आप कौन हो? कंज्यूमर. The next one is on the basis of incidence and impact of tax, a tax can be either direct tax और indirect tax. तो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जिस पर्सन के ऊपर वो टैक्स लगेगा वो उसका बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकता, वो खुद ही पे करेगा. अगर मेरी इनकम के ऊपर मेरे को इनकम टैक्स लगा है तो उसको कोई और पे नहीं कर सकता. वो जो मेरी इनकम के ऊपर टैक्स लगा मेरे को उसी इनकम में से जितना टैक्स मेरा बनता है अकॉर्डिंग टू स्लैब रेट्स, मैं वो टैक्स गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवा दूंगी. नेक्स्ट वन इज इनडायरेक्ट टैक्स. इनडायरेक्ट टैक्स अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो सेल्स टैक्स. इसमें क्या होता है कि जो बर्डन है वो शिफ्ट किया जाता है नेक्स्ट पर्सन के ऊपर. वो सेलर क्या करेगा? सेलर आपसे पैसा इकट्ठा करेगा और किसको डिपॉजिट करवाएगा? गवर्नमेंट को. तो आप इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को पैसा डिपॉजिट करवा रहे हो, बट किसके थ्रू? वो आप करवा रहे हो सेलर के थ्रू. The next topic is points of difference between direct tax and indirect tax. First one is incidence of tax or first burden. In case of direct tax, first burden is only on one person. If we talk about indirect tax, same way the burden is on one person. Either it can be a seller or either it can be a कंज्यूमर. अगर हम बात करते हैं डायरेक्ट टैक्स की, तो अगर मेरी इनकम के ऊपर टैक्स लगा है तो इंसिडेंस ऑफ टैक्स भी मैं ही हूँ और इम्पैक्ट भी मेरे ऊपर ही पड़ रहा है, तो मैं ही सिंगल पर्सन हूँ. लेकिन अगर हम सेल्स टैक्स की बात कर रहे हैं, लाइक इन केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, अगर सेल्स टैक्स की बात करें तो उसमें क्या होता है कि बर्डन किसका था? सेलर का. लेकिन उसने बर्डन किसके ऊपर शिफ्ट किया? आपके ऊपर. तो आप क्या हो? वन पर्सन. तो दोनों केसेस में वन पर्सन ही आएगा आपका. नेक्स्ट इज
इम्पैक्ट ऑफ टैक्स एंड अल्टीमेट बर्डन। अब अगर इनकम टैक्स की बात लेते हैं तो उसमें क्या है कि टैक्स मेरे ऊपर लगा, तो फर्स्ट बर्डन भी मेरे ऊपर ही था और अल्टीमेट बर्डन भी मेरे ऊपर ही है, कोई और तो पे कर नहीं सकता इनकम टैक्स। लेकिन अगर हम बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स में, तो क्या हो गया कि जो सेलर है उसने अपना बर्डन किसके ऊपर शिफ्ट कर दिया, आपके ऊपर, तो अल्टीमेट बर्डन किसके ऊपर आ गया, कंज्यूमर के ऊपर। The next difference is taxpayer and tax bearer. Taxpayer and tax bearer is the same person in case of direct tax. कि मेरे इनकम के ऊपर टैक्स लगा, ठीक है, तो मैं क्या होगी, टैक्स पेयर भी मैं ही हूँ और टैक्स बियरर भी मैं ही हूँ। लेकिन अगर हम बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स की, उसके ऊपर जैसे हमने पीछे अभी डिस्कस किया है कि सेल्स टैक्स की हमने एग्जांपल ली थी, तो सेल्स टैक्स में क्या आता है कि बर्डन किसी और के ऊपर होता है लेकिन उसको शिफ्ट किसी सेकंड पर्सन के ऊपर किया जाता है। तो उस केस में क्या आएगा, टैक्स पेयर सेलर है, सेलर डिपॉजिट करवा रहा है गवर्नमेंट को टैक्स, लेकिन बियर किसने किया, उसका बोझ किसने सहा, किसने अपनी पॉकेट से पे किया टैक्स, वो कौन है, वो आप हो, कंज्यूमर। The next point is final burden on consumer. In case of direct tax, first and final burden is on the same person. लेकिन अगर हम indirect tax की बात करते हैं तो final burden of every indirect tax is on the consumer. Next is who pays it. Direct tax are paid directly to the government by the person liable to pay tax. अगर मेरी इनकम के ऊपर टैक्स लगा है तो मैं डायरेक्टली गवर्नमेंट को अपना इनकम टैक्स पे करूंगी। लेकिन अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं तो पे कोई और करता है, मतलब बियर टैक्स कोई और करेगा, जैसे कंज्यूमर है कंज्यूमर टैक्स बियर करेगा, लेकिन गवर्नमेंट को डिपॉजिट कौन करवाएगा, कंज्यूमर नहीं करवाता, कौन करवाता है, सेलर। The next one is paid directly or indirectly. Direct taxes are those which the taxpayer pays directly from his income, wealth or estate, like property tax. Indirect tax are those which the taxpayer pays indirectly while purchasing the goods and commodities. And the next difference is point of levy. Direct taxes are those which are paid after the income reaches the hands of the taxpayer. कि अगर आपको इनकम होगी, आपने इनकम अर्न कर ली है, देन आपको गवर्नमेंट को अपनी इनकम के ऊपर जितना टैक्स बनता है अकॉर्डिंग टू स्लैब रेट्स, वो उतना अमाउंट का टैक्स आप गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाओगे। लेकिन in case of indirect taxes are paid before the goods and services reach the taxpayer. अभी आप अपने प्रोडक्ट को अपने घर लेके नहीं गए हो, अभी अपने प्रोडक्ट को यूज नहीं किया, लेकिन आप जिस टाइम पे परचेज कर रहे हो प्रोडक्ट, आप उसी टाइम जो है टैक्स है वो पे कर रहे हो। टैक्स कैसे पे कर रहे हो, जैसे आपने देखा होगा कि प्रोडक्ट की जो पैकेज होता है, रैपर के ऊपर क्या लिखा होता है, MRP इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। तो आपने जब प्रोडक्ट की प्राइस पे की है, आपने उसी टाइम साथ में टैक्स पे कर दिया। द नेक्स्ट डिफरेंस इज कैटेगरीज। अगर हम इंडायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं तो उसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, लाइक इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स। अगर हम इंडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो उसकी एग्जांपल्स क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो अभी लेटेस्ट चल रहा है, GST, बहुत फेमिलियर है, आप उसे बहुत फेमिलियर हो चुके हो। अब वैट है, कस्टम ड्यूटी है, एक्साइज ड्यूटी है, लेकिन जो आपके सिलेबस में है वो हमने GST डिस्कस करना है। नेक्स्ट इज टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन बेसिकली होती क्या है कि आप अपनी इनकम को छुपाने की कोशिश करते हो। आपका मेन पर्पस क्या आता है कि मेरी इनकम है, मैं अपनी इनकम का कुछ पार्ट गवर्नमेंट को क्यों दूं, अगर देना भी पड़ रहा है तो मैं कम दूं। अगर मेरे को 1 लाख देना पड़ रहा है अपनी इनकम के ऊपर टैक्स, तो मैं 1 लाख ना दूं, मैं 90,000 दे दूं, मैं 70,000 दे दूं। तो उसके लिए आप क्या करते हो, आप टैक्स इवेजन करने की कोशिश करते हो,
कुछ ना कुछ जो आप लूप होल्स लगाते हो कि आपकी इनकम कम शो हो और आपको टैक्स कम पे करना पड़े गवर्नमेंट को। तो उस केस में क्या है कि हमारा जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसमें टैक्स इवेजन के चांसेस ज्यादा होते हैं। लेकिन अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं उसमें हमारा बेसिकली क्या ऑर्गेनाइज सेक्टर्स है। जैसे आपने जीएसटी में देखा ही होगा कि जीएसटी नंबर मिला हुआ है, तो उसमें क्या होता है कि जो टैक्स इवेजन के चांसेस है वो बहुत ही रिड्यूस हो जाते हैं। नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ कलेक्शन। कॉस्ट ऑफ कलेक्शन एज ए परसेंटेज ऑफ टैक्स कलेक्टेड इज हाई, कि हमें टैक्स कलेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट को ज्यादा खर्चा करना पड़ रहा है। लेकिन अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं उसमें खर्चा कम है लेकिन इनकम गवर्नमेंट को ज्यादा इन फॉर्म ऑफ टैक्सेस। नेक्स्ट डिफरेंस इज इम्पैक्ट ऑन प्राइस ऑफ गुड्स। डायरेक्ट टैक्स का प्रोडक्ट की प्राइस के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आता। जैसे आपकी इनकम है, इनकम का प्राइस के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा ऐसे। लेकिन अगर हम इंडायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं, इंडायरेक्ट टैक्स में अगर हम सेल्स टैक्स को डिस्कस करें तो उसमें क्या आता है कि जैसे प्रोडक्ट की कॉस्ट है, फिर उसकी कुछ प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया होगा, देन प्राइस बनी है, प्राइस के ऊपर फिर उन्होंने टैक्स इम्पोज किया है, तो अल्टीमेटली प्रोडक्ट का प्राइस थोड़ा सा हाई हो गया। तो जो हाई प्राइस है वो आप किसको पे करनी पड़ी, आपको पे करनी पड़ी। तो उस केस में क्या है कि जो अल्टीमेट बर्डन है वो किसके ऊपर आता है, कंज्यूमर के, उसको जरा प्राइस पे करनी पड़ती है। नेक्स्ट इज इजी और डिफिकल्ट टू कलेक्ट। जो हमारा डायरेक्ट टैक्स है उसमें थोड़ी सी डिफिकल्टी ज्यादा है कलेक्शन में। लेकिन अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं तो उसमें एज कंपेयर टू कलेक्शन ऑफ डायरेक्ट टैक्स थोड़ी सी जो हमारी डिफिकल्टी है वो कम है। इट मीन्स सम इजीनेस, देयर इज सम इजीनेस इन कलेक्शन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। अब कैसे है, हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमने आगे इसको फर्दर डिटेल में डिस्कस करना है। अभी आप इन टर्म के साथ थोड़ा सा फेमिलियर हुए हो, तो अभी हम इनको डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। हम अब आगे जाके जब हम नेक्स्ट लेक्चर्स इसके ऊपर डिस्कस करेंगे टॉपिक्स को, देन उसमें हम आगे फर्दर डिस्कस करना है कि प्री जीएसटी एंड देन जीएसटी पीरियड क्या है। So hope these topics are clear to you.